আছে পিপলস নৰ্থ ইষ্ট লৈ আহিছো মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বাংলাদেশী কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক এছআইআৰ আহিলেই ধৰা পৰিব এটা বাংলাদেশী আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি আহে এটাও বাংলাদেশী নেখেদে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ক'লে যে কংগ্ৰেছৰ দিনতে বাংলাদেশী ঘুমাইছিল অসমত আৰু অসমৰ কোন কোন প্ৰান্তত বাংলাদেশী কেনেকৈ থিতাপি লৈছে অসমৰ মাটি কব্জা কৰিছে কেনেকৈ হিন্দুৰ সংখ্যা কমি গৈছে সকলো হিচাপ দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ক'লে যে বাংলাদেশী মুক্ত হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ পৰা এটা বাংলাদেশী ধৰি খেদা হ'ব কোনো বাংলাদেশীক অসমত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু এই বাংলাদেশীবোৰ কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক আৰু সেইভাবে কংগ্ৰেছে যিমান পাৰে বাংলাদেশী আনেহে অসমৰ পৰা এটাও বাংলাদেশী বাহিৰ নকৰে গতিকে ৰাইজে এবাৰ চিন্তা কৰক কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বাংলাদেশীৰে অসমখন ভৰি পৰিব বাংলাদেশীয়ে ৰাজত্ব কৰিব আৰু এছআইআৰ যেতিয়া আহিব তেতিয়া এটা বাংলাদেশী ধৰা পৰিব আৰু অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা বাংলাদেশী খেদা হ'ব বুলি ক'লে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে লৈছো হবিছৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে বাংলাদেশী খেদাৰ প্ৰসংগত পুনৰ মন্তব্য কৰিছে বাংলাদেশী হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক আৰু সেইভাবে বাংলাদেশীক আশ্ৰয় দিছিল কংগ্ৰেছে এছআইআৰ আহিলে এটা বাংলাদেশী ধৰা পৰিব প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ পৰা লগে খেদা হ'ব বাংলাদেশী কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে এটাও বাংলাদেশী নেখেদে আমি জানো এই কথা মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে 174 বিঘা ভূমিত কব্জা কৰি আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত অহা বাংলাদেশীয়ে আৰু সেই বাংলাদেশী লাহে খেদা হৈছে অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰক্ষাৰ বিপদ আছিল এই বাংলাদেশীৰ বাবে এই বাংলাদেশীক বাহিৰ কৰা হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ শক্তিশালী পদক্ষেপত বাংলাদেশী বাহিৰ কৰা হৈছে প্ৰশংসা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে 1.5 লাখ বিঘা ভূমি মাটি বাংলাদেশীৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে এই কথা উল্লেখ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অহা বছৰলৈ 5 লাখ বিঘা ভূমিত যে উচ্ছেদ চলিব এই মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বাংলাদেশী মুক্ত অসম দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা বিচাৰি বাহিৰ কৰা হ'ব বাংলাদেশী খেদা হ'ব এটা বাংলাদেশী কংগ্ৰেছে অনা বাংলাদেশী এটাও থাকিব নোৱাৰিব অসমত কোনো এটা কোণত বাংলাদেশী থাকিব নোৱাৰিব চৰকাৰ আহাৰ লগে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাৰ লগে বাংলাদেশীৰ ৰাজত্ব হ'ল হয় এটা বাংলাদেশী কংগ্ৰেছে নেখেদিলে হয় আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ তেতিয়াহে বাংলাদেশী মুক্ত হ'ব অসম আৰু ইতিমধ্যে বাংলাদেশী বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে তেওঁ কি ক'লে আমি এই মুহূৰ্তত শুনাব বিচাৰিছো গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ডাঙৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে তেওঁ কি কৈছে শুনক जरा जोर से बोलो कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी अरे जोर से बोलो निकालने देगी एसआईआर होगा तो स्वाभाविक रूप से घुसपैठिए पहचाने जाएंगे राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे हिम्मत नहीं है उनको बोलने की क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं वोट बैंक बने कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में इस 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी वो घटकर 36 लाख हो गई कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे दुबरी बारपेटा दर्रंग मोरीगांव बोंगाई गांव नौगांव और घोलपड़ा ये सारे जिले मुस्लिम बहुल घुसपैठिया बहुल बने हैं 174 बीघा जमीन कांग्रेस के समय में घुसे हुए घुसपैठियों ने कब्जाई हुई थी घुसपैठियों का यहां निवास हुआ करता था जो हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा भूमि मुक्त कराई उसमें से 174 बीघा भूमि और यहां से घुसपैठियों के निवास के कारण गुवाहाटी आसाम और पूरे देश का सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा था जिस भूमि पर से हमारी सुरक्षा चिंताएं पैदा करती थी वही भूमि पर से आसाम की सुरक्षा की चिंता दूर करने वाली 10वीं बटालियन बैसेगी मित्रों कांग्रेस के समय में यहां पर घुसपैठिया घुसे जिसने आसाम की डेमोग्राफी को जनसांख्यिकी को क्राइसिस के लेवल तक ले जाने का काम उस वक्त भी हम
घुसपैठ का विरोध करते थे। असम आंदोलन के समर्थन में हम सभी लोग देश भर से आए थे और हम नारा लगाते थे देश में, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। परंतु ये कांग्रेसियों की नींद नहीं खुलती थी। आज कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने निकली है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, धुबरी, बारपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपड़ा, ये सारे जिले मुस्लिम बहुल, घुसपैठिया बहुल बने हैं। किसकी जिम्मेदारी है? भाइयों बहनों, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी कांग्रेस पार्टी पर जाती है। मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी है भाई? अरे जोर से बोलो, किसकी है? आज मैं कांग्रेस पार्टी को कहकर जाता हूं कि आपने जो पाप किया है, वो पाप से आसाम को मुक्त कराने का काम हम करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी करने वाले। हेमंत जी ने 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई। अभी अभी उन्होंने कहा कि 5 लाख बीघा जमीन मुक्त कराएंगे। हेमंत को मैं जानता हूं, ये वचन के बड़े पक्के हैं। मैंने गत चुनाव में कहा था 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने 1.5 लाख लोगों को करप्शन के बगैर नौकरी देने का वादा पूरा कर दिया है। तो 5 लाख बीघा जरूर पूरा करेंगे। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा, चाहिए हिम्मत, चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। परंतु उसको निकालने के लिए राज्य सरकार का समर्थन चाहिए। मुझे बताओ भाई, जिन्होंने घुसपैठिए घुसाए वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को निकालने देगी क्या? जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? घुसपैठिया निकालना है तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। कांग्रेस के 20 साल में कई सारे जिलों में, इस 7 जिलों में हिंदू आबादी जो 38 लाख थी वो घटकर 36 लाख हो गई और पूरे जिले घुसपैठियों से भर गए। ये 7 जिले जो है, धुबरी, बारपेटा, दरंग, मोरीगांव, बोंगाई, नौगांव और गोलपाड़ा, वो भी हमारे हैं भाई। उसको घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बताइए, जोर से बोलो, बचाना चाहिए नहीं कराना चाहिए? मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं कि आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए। जरा